हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वी ऑलरेडी डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और लास्ट क्लास का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. So how electrolytic cells is prepared? There is a beaker. In the beaker there is a electrolyte. Already we discussed everything. Now in the electrolyte there are two electrodes are dipped. First is called the cathode, second one is the anode. These are attached with the battery because electrolytic cell electrical energy is changed into the chemical energy. So this is the battery external source. This is negative terminal called cathode and second one is the positive terminal called anode. This is all about the construction of the electrolytic cell. This is electrolyte. This is electrolytic cell. What is electrolytic cell? Already we discussed. Those cell which convert electrical energy into the chemical energy is called the electrolytic cell. Now suppose we have molten NaCl. Suppose this electrolyte is NaCl. So what is happen with the NaCl in this electrolytic cell? So this NaCl undergoes electrolysis. Electrolysis means dissociation of the electrolyte into its ions. So this will dissociate into Na plus and Cl negative ion. No issue. Now what is happen now? This is cation and this is anion. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि Cc कैटायन गोज टू कैथोड. तो कैटायन विल मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड. वाई कैथोड? बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, सो इट मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. नाउ कम टू द एनायन. एनायन इज नेगेटिव चार्ज, सो इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड. व्हाट इज हैपन with these cation when they moves towards the respective electrode? Means cation goes to cathode and anion goes to anode. Now this NaCl this dissociate into Na plus and Cl negative. Na positive goes to the cathode and Cl negative goes to the anode. So this is highly rich electron rich electrode. So when the cation goes to this negative charge electrode, it neutralizes themselves. Similarly, when Cl negative reaches to the anode, it is positive charge, so chlorine lose their electron and becomes neutral. तो simple सा meaning है, when the ions moves towards the electrode they lose their charges and becomes neutral. तो how this happen? Now reaction at cathode. सबसे पहले हम कैथोड पर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे कैटायन जा रहा है. तो Na प्लस इज ए कैटायन. ठीक है, दिस मूव्स टू द नेगेटिव प्लेट. तो this electrode is highly rich in electron. So Na plus takes the electron and change into the neutral atom. So what is this process called? This is reduction because Na plus gain the electron. So this is a reduction process. So it means at cathode reduction process is taking place. Now come to the anode. What is happen at the anode? Reaction at anode. Which will move towards the anode? Simple, Cl negative ion. Anion moves towards the anode. So Cl negative, it having highly negative charge, it moves towards the positive plate. So lose its charge. It becomes Cl dot plus lose the electron. So loss of electron is called the oxidation. This is called the oxidation process. Means at anode oxidation is taking place. Now this Cl dot is unstable because we know chlorine never exists in the form of Cl dot.
तो इट विल चेंज इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट मीन्स Cl2, क्लोरीन गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो Cl डॉट प्लस Cl डॉट, दिस विल चेंज टू द Cl2 गैस। तो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस रिएक्शन? एट कैथोड सोडियम इज डिपोजिट, तो यहाँ पर कैथोड पर सोडियम धीरे धीरे डिपोजिट होता चला जाएगा। एंड व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड? क्लोरीन गैस इज रिमूव, तो फ्रॉम द एनोड Cl2 gas is evolved, remove out from the reaction. So this is all about the electrolysis of the NaCl when the NaCl present in the molten or fused state. Molten or fused state when there is no water present. But the problem arises when there are more than one cation and one anions are present. Now there is only one cation and one anion, तो सिंपल सा एक कैटायन है तो वो कैथोड के पास चला गया एंड सेकंड वन इज द एनायन, तो एनोड के पास चला गया, देयर इज नो इशू। बट व्हेन द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर ग्रेटर देन वन, देन देयर इज ए हेल्दी कंपटीशन टू रीच द कैथोड और एनोड बिटवीन द आयंस। तो ये सारी चीज़ें अभी नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नोट करो जल्दी से। आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या? व्हेन देयर आर मोर देन वन कैटायन and anion in the electrolytic solution. Suppose करो in the electrolytic solution there is more than one cation or more than one anion. So what is happen? Which cation will move towards the cathode and which anion will move towards the anode? So this problem is solved by using a theory called as the preferential discharge theory. ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कभी भी when there are more than one cation or more than one anion, then we use the preferential discharge potential theory. ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं when there are more than one cation? तो for this discharge potential of ions are used. What are discharge potential? अभी मैं आपको बताऊंगा। तो how it works discharge potential? तो lesser is the discharge potential. Lesser is the discharge potential. Discharge potential greater is the affinity towards the electrode. सपोज करो मेरे पास दो कैटायन है, दोनों कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो क्या करेगा, वो पहले कैथोड की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एनायन, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन कभी कभी दिस वर्क 96 या 97% तो हमारा ये वाला थ्योरी काम करती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ द आयंस है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। वो बहुत कम है, एक दो केसेस में वो हम लेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ समटाइम मूवमेंट ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन nature of electrode. How it depends upon the nature of electrode we will discuss. ठीक है, तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो। अभी मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। हाउ द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस। जल्दी से नोट करो बच्चों,
जगह छोड़ देता हूँ। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, हमें 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज़ होती है, मैं वापस से लिख देता हूँ बच्चों, और उसको याद करने का क्या मेथड है, आई विल आल्सो राइट हाउ टू लर्न द दैट टेबल। जो टेबल होगी वो सीरीज़ होगी हाउ वी लर्न द सीरीज़, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो कम टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन टेबल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है बच्चों, मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ एलिमेंट्स के नाम, आयंस के नाम जो भी है, और आपको याद करने का मैं मेथड बता दूंगा। सबसे लीस्ट जो आयन है, मेटल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, दैट इज लिथियम। मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ, फिर याद करने का मेथड बता दूंगा। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीज इस तरीके से नीचे जा रही है, अभी नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, बाकी वो आयंस जो है वो नीचे ही हैं, वो एलिमेंट जो है वो नीचे हैं। क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, lead and H plus. The reduction potential of H plus is taken to be 0.00. ठीक है, इसी से हम फाइंड आउट करते हैं 0.00 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी होती है लिथियम की, दिस इज -3.04। आगे जब जाएंगे तो वो बढ़ता हुआ जाता है, अभी थोड़े से और रह गए, उसको लिख लेते हैं। नाउ कम टू द, इसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, और एक और याद रख लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इज हैविंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन का कितना होता है 2.84 वोल्ट, लिथियम कितना होता है -3.04 वोल्ट। आपको वैल्यूज याद नहीं करनी, केवल ये पता होना चाहिए विच इज लाइंग अबव और विच इज लाइंग लोअर इन द टेबल, कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, देन वी मूव डाउनवर्ड। जिंक के बाद क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, इस तरीके से। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस हाउ वी लर्न दिस। ठीक है, हमें केवल याद करना है, हमें पता होना चाहिए कि विच हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल और विच हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यूज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों, आप साथ के साथ नोट करते हुए चलना। तो हिंदी में लिख रहा हूँ, दिस इज लिखा, लिथियम फॉर लिखा, खत, खत माने लेटर, बल्मा सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, कोई बच्चा हंसेगा नहीं। को नया मजा आया, लिखा खत बल्मा को नया मजा आया, मन जाने को करे, क्रोमियस करे, फिर से करीना को नहीं, करीना को नहीं, सानिया से प्यार है, हाइड्रोजन इज है।
तो लिखाकत बलमा को नया मज़ा आया, मन जाने को करे फिर से, करीना को नहीं सानिया से प्यार है। और इसको कैसे याद करना है बच्चों, जस्ट फर्स्ट लेटर मैंने ले रखे हैं, फर्स्ट लेटर, तो दिस इज छापा, CHAPA, छापा। और लास्ट वन तो सारे बच्चों को याद रहेगा, फ्लोरीन, बिकॉज इट हैविंग हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको बस क्या करना है, ये याद कैसे करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, इफ़ आई एम आस्किंग मैग्नीशियम एंड बेरियम विच विल हैव हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको बताना चाहिए कि मैग्नीशियम लाइंग बिलो इन द टेबल, सो इट हैविंग हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द बेरियम। सपोज करो आई एम टेकिंग मैग्नीज एंड Na+2 विच विल हैव हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, निकल लाइंग बिलो द मैग्नीज, सो Na+2 हैव हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द Mn+2। क्लियर बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ H+ एंड Cu+2 किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो Cu+2 हैविंग हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द H+। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, देन उसके अकॉर्डिंग आप डिस्चार्ज पोटेंशियल को भी फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, तो यहाँ पर नोट करके लिख लेता हूँ कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मीन्स अगर मैं बात करता हूँ कि Mg+2 और Ba+2 विच विल हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, बेरियम का। ठीक है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्चार्ज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल सी बात है। तो अगर सपोज करो ये दोनों मुझे दे रखे हैं, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैटायन मूव करेगा, तो सिंपल सी बात है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है बिकॉज इट हैविंग हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लो। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वही क्या करता है, डिस्चार्ज होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सी वही बात है कि जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही मूव करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है वही जो है वो डिस्चार्ज पहले होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वही पहले डिस्चार्ज होगा। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो अगर सपोज करते हैं कि मैंने दे रखा है Ba+2 एंड Na+ एंड Pb+2, इन सबको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूँगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा बच्चों, लेड, Pb+2, सबसे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। देन दो बचे हों बेरियम और Na+। यहाँ पे क्या, बेरियम तो मुझे स्टार्टिंग में मिल गया, नीचे कौन है Na+, इसका मतलब Na+ हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल, तो नाउ Na+ एंड लास्ट वन इज बेरियम Ba+2। अब नाउ कम टू द डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका होगा, Ba+2 का, देन Na+, और सबसे लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा वो किसका होगा, Pb+2 का। इसका मतलब आउट ऑफ दीज थ्री विच विल मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, तो Pb+2 बिकॉज इट हैविंग द लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो बच्चों सारे बच्चे इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सारे बच्चे इसको लाइक करो ताकि दूसरा वीडियो हम अच्छे से और बना सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है।
थैंक यू। नोट करो उसे बच्चों जल्दी से।